Hello everyone. So welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. And here I am, your Isha ma'am. So how are you all? I hope that you all are doing very fine. तो चलो without any delay class start करते हैं. तो in the last class we were talking about the diversity of the living organisms, right? And वहाँ पर हमने last class में टीनोफोरा किया था. याद है टीनोफोरा किया था या निडारिया किया था? याद करते रहो, तब तक मैं बताती हूँ. तो लास्ट क्लास में हमने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कुछ पोर्शंस कवर किया था, तो वहाँ पर हमने निडारिया तक कवर किया था. तो आज हम टीनोफोरा से लेके बाकी जो भी फाइलम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो दिस आर आवर कंटेंट्स फॉर टुडे. विल ट्राई टू कवर दिस पोर्शंस जितना हो सके. तो टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्किलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, we will try to cover all these topics in today's class. So first comes the टीनोफोरा. ठीक है, I'll just tell you one thing. The tino, here if you look at the name tino, तो tino means comb. ठीक है, टीनो वर्ड का मतलब है comb, एंड ये जो फोड़ा मतलब है इसका मतलब है bearing. So you can see that it means the comb bearing. ठीक है, so अभी टीनोफोरा के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. It is known as the comb jellies and the sea gooseberries or the sea walnuts, because if you look at their structure, थोड़े walnut type के दिखते हैं. ठीक है, so that is why these are the names of their own. ठीक है, they are diploblastic. Diploblastic means they only have two germ layers, right? They only have two germ layers. कौन से है वो दो germ layers? Exactly. One is the ectoderm, another is the endoderm, right? That is why they are diploblastic. And they are radially symmetrical. Radially symmetrical matlab if you cut their whole body from the central axis, you can have two equal halves. ठीक है, that is about the radially symmetrical. Then they have the comb plates for locomotion. You can see comb bearing. So they have this 8 rows of comb plates जिनको वो use करते हैं अपने locomotion के लिए. ठीक है, then ट्रांसपेरेंट एंड जिलेटिनस बॉडी. उनका बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है और जिलेटिनस, इसीलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका नाम है कॉम्ब जेलीज, राइट? एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन मोनोमॉर्फिक थ्रू आउट द लाइफ. मोनोमॉर्फिक मतलब the way they look at their young age, the same they look at in their adult time. Like there is no change in the structure or how they look like. ठीक है? So, and a very important thing, questions come from this portion very often कि why they are known as the comb jellies, because they have the comb plates. ठीक है, locomotion के लिए क्या use करते हैं, या फिर they ऐसे भी MCQs आते हैं कि are they freshwater animals or marine animals, are they diploblastic or triploblastic. So you have to have focus on this very small details also. ठीक है, next. Characterized by the alteration of the generations. कि इनके जो generations है, there we can see the alterations in that. They exhibit the bioluminescence. Bioluminescence मतलब if you just look at the picture also, you can see they emit the lights. There are some organisms जो बायोलुमिनेसेंस दिखाते हैं, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स उनके बॉडी पे कुछ सेल्स है जो लाइट एमिट कर सकते हैं. इसीलिए नाइट टाइम पे अगर आप उनको देखोगे तो आप उनके बॉडी से लाइट निकलता हुआ देखोगे. ठीक है, जैसे फायरफ्लाइज में हम देखते हैं. एंड देयर आर सम सेल्स व्हिच आर पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बायोलुमिनेसेंस, और उनके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है कोरम सेंसिंग, उसके जरिए ये बायोलुमिनेसेंस दिखाते हैं. One also another important thing, this Ctenophora, they have the coloblast cells. They have the coloblast cells which they use for their adhesion. These are their adhesive cells. ठीक है, next. तो टीनोफोरा के बारे में थोड़ा और जानते हैं. हाँ,
So in case of their digestive system, they have the gastrovascular cavity with a pharynx and a stomach. इनका जो gastrovascular जो digestion के लिए preferred है, वहाँ पर you can see a pharynx and a stomach, right? Digestion is both extracellular and intracellular. ठीक है, both cell के अंदर बाहर दोनों तरफ से digestion होते हैं. Then if we talk about their nervous system, then they have a nerve net system के ऐसे जो भी nerves है वो net के तरह ऐसे बिछा हुआ रहता है. Statocysts are present. Statocysts, they are the cells which they use which are used for the sensing of movement और बैलेंस मेंटेन के लिए. ठीक है, मूवमेंट और बैलेंस इन सब को मेंटेन करने के लिए दे हैव दिस सेल जिसका नाम है स्टैटोसिस्ट. ठीक है, देन अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं ये. ठीक है, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रीडोमिनेंट हियर विद द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के बाहर होता है. जैसे ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है कि द ओवम दैट इज इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी कम्स इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, द चाइल्ड इज स्टोर्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी, राइट? दैट इज अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. बट इफ यू टॉक अबाउट द टीनोफोरा, उनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. द एग एंड स्पर्म उनका जो लाइक द मेल एंड फीमेल गैमेट उनका जो मिक्सिंग या फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है. ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू आउट सेडेप्टिव लार्वा कि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो ऐसा डायरेक्ट ऐसे बच्चे से लेकर अडल्ट तक वैसा ह्यूमन के जैसा नहीं होता है. उनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब उनका एक लार्वल स्टेज होता है, वहां से दे बिकम द अडल्ट. ठीक है, रीजनरेशन इज कॉमन. रीजनरेशन हमको पता है कि फ्रॉम अ सेल लाइक इफ देयर इज अ कट और देयर इज सम इंजरी, सो इफ देयर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट तो वो उस पोर्शन को रीजनरेट कर देते हैं. ठीक, फिर से. ठीक है, नाउ अगर हम टीनोफोरा के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, देन प्लूडोब्रैकिया, टीनोप्लाना, ये है टीनोफोरा के एग्जाम्पल्स. ठीक है, और एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे पता है आप बोलोगे मैम इतना तो याद नहीं रहता है, कैसे करें? एक बुक मतलब एक कॉपी लो, उसमें चार्ट बनाओ. ठीक है, सोचो पॉरीफेरा, फिर उसके बाद निडारिया, टीनोफोरा जो भी है, एक एक करके हर किसी का एग्जाम्पल लिखो और रोज एक बार 5 मिनट के लिए उसको देखो. ऐसे ही याद रहेगा. अदरवाइज अगर आप आज पढ़ोगे फिर आप 10 दिन बाद याद करोगे, नहीं याद होगा. ठीक है, तो वो एक चार्ट बना लो या फिर दीवार पे चिपका दो और उसको देखो, तभी याद रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम जा रहे दूसरे फाइलम में विच इज द Platyhelminthes. आप पिक्चर में भी देख सकते हो. These are the worms. So here they are the flatworms such as the flukes and the tapeworms. Flat मतलब आप सोच सकते हो कि ये जो worms है वो थोड़े flat nature के होते हैं. They are often parasitic. That means they can cause disease also. They can cause disease in the human body also. ठीक है, then they have the organ level organization. मतलब inside their body the cells they like form the tissues for a particular function. Now the similar kind of tissues they come together and they form the organ which is specified for a particular function. जैसे जो सोचो किडनी हमारे लिए फिल्ट्रेशन का काम करती है, हार्ट जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करती है. ठीक है, तो that is how they also have the organ level organization, right? They are acoelomates with no fluid filled body cavity कि इनके बॉडी के अंदर सीलोम नहीं रहता है. ठीक है, they have the dorsoventrally flattened body. आप पिक्चर में भी अगर देखोगे इनका बॉडी ना आपको वो जो पजामे के नारे होते हैं ना फ्लैट टाइप के, वैसे होते हैं ये फ्लैट टाइप के. ठीक है, दैट इज वाई फ्लैटवर्म्स. ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब दे हैव 3 germ layers. They have 3 germ layers. What are those? They have the ectoderm, right, the outer thing. Then inside that they have the mesoderm, the middle one, and then the
एंडोडर्म, राइट, दे हैव दिस 3 germ layers एंड उसके साथ बोल रहे हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब जैसे ह्यूमंस का बॉडी सोचो, उसको अगर आप एक बीच के प्लेन से इफ यू कट इट डाउन, यू विल बी हैविंग टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, ठीक है, दैट इज अबाउट द बायलैटरली सिमेट्रिकल। हो गया। नेक्स्ट, अब हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। दे हैव अ गट विद अ ब्लाइंड सैक, मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ना, दे हैव द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, कंप्लीट क्या है? जैसे ह्यूमंस वी हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब वी हैव आवर माउथ विच इज यूज्ड फॉर द इनटेक ऑफ द फूड एंड वी हैव द एनस थ्रू, जिसके जरिए हमारे बॉडी का जो एक्सक्रीशन होता है वो हम करते हैं, ठीक है, मतलब वी हैव अ स्पेसिफाइड प्लेस फॉर द इंजेशन एंड इजेशन, बट दोज ऑर्गेनिजम्स हु हैव द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके बॉडी में सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग ही होता है एंड दैट ओपनिंग इज साइमल्टेनियसली यूज्ड फॉर द इंजेशन इजेशन बोथ, ठीक है। सो दैट इज द केस इन केस ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस, दैट दे हैव द माउथ विच इज यूज्ड फॉर इंजेशन एज वेल एज इजेशन, दैट इज व्हाई दे हैव द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम and they don't have any anus because इनका तो स्पेसिफाइड ही नहीं है भाई, हमारे तरह एक ही ओपनिंग है, इंजेशन इजेशन जो करना है भाई उधर से ही करो, दैट इज व्हाई दे हैव द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, Fluke have suckers and tapeworms have hooks and suckers for attachment to the host body। एक बात बोलती हूँ मैं, प्लैटीहेलमिन्थेस का एक है कि उनके बॉडी में hooks and suckers रहते हैं, ठीक है, एंड वी हैव सीन दैट द प्लैटीहेलमिन्थेस दे कैन बी पैरासाइटिक, मतलब वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो इनके बॉडी में ये हुक्स एंड सकर्स रहते हैं ताकि सोचो हमारे बॉडी के इंटेस्टिनल वॉल में वो एडहेयर कर सके। दिस हुक्स एंड सकर्स, दिस आर स्पेशलाइज्ड फॉर द एडहेरेंस और द अटैचमेंट इनसाइड आवर बॉडी, लाइक इंटेस्टिनल वॉल्स में सोचो, ताकि वो वहाँ पर रह सके फूड के मतलब जब फूड वहाँ से आता है जाता है उसके टाइम पे एक्सपेल्ड आउट ना हो जाए, ठीक है। सो द हुक्स एंड सकर्स दैट इज फॉर द अटैचमेंट और द adherence, दैट इज नॉट फॉर द फूड इंजेशन और समथिंग, ठीक है, प्लीज याद रखना, क्योंकि इस चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हुक्स एंड सकर्स का काम क्या है, क्योंकि सकर्स देखते हुए थिंक कि ये खाने को इनगल्फ करता है समथिंग, नो, दैट इज फॉर द एडेरेंस और द अटैचमेंट बिकॉज दे हैव द पैरासाइटिक एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, देन दे हैव द hermaphroditic reproductive system, that inside the body they have both the gametes, like both kind of sex cells which is the male and female, both are produced in their body, ठीक है। जैसे हम hermaphrodite, हम लोग hermaphroditic नहीं है, जैसे I am a female तो मेरे बॉडी में सिर्फ फीमेल गैमेट ही प्रोड्यूस होगा, इफ यू आर अ मेल तो आपके बॉडी में सिर्फ मेल गैमेट ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट द प्लैटीहेलमिन्थेस दे आर hermaphroditic, मतलब both the type of gametes are produced in their body, reproduces sexually through the internal fertilization, तो इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, इंटरनल तो ऑफकोर्स क्योंकि दोनों ही गैमेट तो भैया हम आपके अंदर होगा तो आप तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर ही लोगे, ठीक है। सम रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन, कुछ स्पीशीज है जो एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है, सोचो दिस इज द पेरेंट बॉडी, नाउ इट गेट्स फ्रैगमेंटेड इनटू सम पोर्शन, सोचो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 फ्रैगमेंट हुए एंड फ्रॉम ईच फ्रैगमेंट अ न्यू ऑर्गेनिज्म विल अराइव, ठीक है। नेक्स्ट, रीजनरेशन इज कॉमन। रीजनरेशन मैंने अभी आपको बताया कि सोचो एक कट हुआ, इंजरी हुआ, कुछ भी हुआ, वहां से देयर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच विल रीजनरेट दोज पोर्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, फिर से मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, ऐसे चार्ट बना के रखो ताकि याद रहे। प्लैनेरिया, टेनिया, फैसिकोला, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है। चलो अभी हम जा रहे एक दूसरे फाइलम में जिसका नाम है एस्केलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस मतलब फ्लैटवर्म, एस्केलमिन्थेस मतलब
राउंड वर्म, ठीक है, याद रखना ये चीज। Phylum Aschelminthus, also known as the Nemathelminthus, includes the organism commonly known as roundworm. Please याद रखना, इसमें confuse मत होना। Platyhelminthes is the flatworm. प्लेट फ्लैट है, ठीक है, आपका खाने का प्लेट वो फ्लैट है, ऐसे सोचो, तो वो फ्लैटवर्म। एस्केलमिंथिस ये है गोल, तो ये है राउंडवर्म, मतलब ऐसे याद रखो। These worms occupy a diverse range of the habitats from the terrestrial soil, fresh water to marine environments, and many are endoparasitic in plants and animals. मतलब ये जो एस्केलमिंथिस भाई साहब है, ये कहीं पर जगह नहीं छोड़ता, हर जगह इनको रहना है। इनको पानी में रहना है, पानी में भी, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, वहां पर रहना है, इनको लैंड में रहना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पैरासाइटिक नेचर भी है। प्लांट्स के बॉडी में बोलो, ह्यूमंस के बॉडी में बोलो, वहां मतलब एनिमल्स के बॉडी में बोलो, वहां पर भी इनको भाई साहब को रहना है और फ्री में रह के डिजीज भी कॉज करना है, ठीक है। तो अब अगर हम एस्केलमिंथिस की बात करें तो एज आई सेड दे आर नोन एज अ राउंडवर्म्स। आप पिक्चर देखो, थोड़े राउंड टाइप के शेप है, ठीक है। दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, दो सम आर पैरासाइटिक, मतलब कुछ स्पीशीज है जो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, बट कुछ स्पीशीज है जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ये मैंने बहुत बार बोल दिया। बाइलैटरली सिमेट्रिकल मतलब इफ यू कट डाउन देयर बॉडी सो यू विल बी हैविंग टू halves, equal halves, ठीक है। Then sorry, not two equal halves, two equal halves तो obviously the left and right identical halves also। जैसे humans में अगर तुम मेरे को भाई बीच में से काट दोगे, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड तुमको मिलेगा ना, वैसा टाइप का। With a distinct anterior and posterior end, किनका एक सामने का particular end होता है, पीछे का end होता है। Characterized by a pseudocoelom, pseudocoelom मतलब they have the coelom but the coelom is not lined by the proper mesoderm। वहां पर ये जो mesoderm होता है pseudocoelom में, mesoderm is absent, like the body cavity is not covered by mesoderm, but अगर पूरा mesoderm से covered नहीं होगा फिर तो ये एसिलोमेट मतलब एसिलोमेट टाइप का हो जाएगा कुछ, ठीक है, बट नहीं। स्यूडोसीलोमेट, स्यूडो नाम से हमको पता है कि इट इज समथिंग फेक, तो इनका जो बॉडी कैविटी है दैट इज लाइंड बाय सम स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म टोटल इज एब्सेंट बट स्कैटर्ड पाउचेस के तरह रहते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर द स्यूडोसीलोमेट, एंड हमने तो ये सब चीज आगे पढ़ भी लिए हैं। सिलिंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, इनका बॉडी सिलिंड्रिकल है और बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं है। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, दे ऑल्सो हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल, कि इनके बॉडी में सेल्स ने पर्टिकुलर टिश्यूज बनाए हैं, पर्टिकुलर टिश्यूज जो एक सिमिलर फंक्शन मतलब प्ले करते हैं, उन्होंने मिलकर एक ऑर्गन बनाया जो ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन प्ले करेगा, राइट। सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री हमने बोल दिया दैट द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू द वन प्लेन। जर्म लेयर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब दे हैव द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीन जर्म लेयर ही प्रेजेंट है, डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। बॉडी कैविटी हमने बता दिया कि ये स्यूडोसीलोमेट है, दैट मीन्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म बट लाइज बिटवीन द मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्चुअली यहाँ पर बॉडी कैविटी वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होता है, मेसोडर्म ऐसे स्कैटर्ड पाउच की तरह इधर 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 रहते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर स्यूडोसीलोमेट। अभी अगर हम इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें, देयर बॉडी इज लॉन्ग, स्लेंडर, सिलिंड्रिकल टाइप का, ठीक है, एंड टैपरिंग एंड बोथ द एंड्स। टैपरिंग मतलब सोचो ऐसे दोनों इधर जाके ना ऐसे थोड़े टैपर हो जाएंगे, मतलब ऐसे थोड़ा चिपक, लास्ट का एंड थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है। सेगमेंटेशन, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, किनके बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं है। दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने तुमको क्या समझाया था बेटा, कि उनके बॉडी में खाना लेने के लिए और एक्सक्रीट करने के लिए दो अलग अलग पोर्शन होंगे, जैसे हमारे बॉडी में है, ठीक है। सो दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब दे हैव अ डिस्टिंक्ट माउथ एंड द एनस, ठीक है। दे हैव द माउथ विच इज लोकेटेड एट द एंटीरियर, मतलब सामने के एंड पे बॉडी के, ऑफन बॉर्डर्ड विद लिप्स बेयरिंग द सेंसरी पैपिले, कि उन माउथ के सामने कभी कभी लिप्स भी होते हैं,
फेरिंग्स इनके बॉडी में मस्क्यूलर फेरिंग्स है एंड दैट इज समथिंग यूज्ड फॉर द सकिंग ऑफ द फूड, ठीक है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ऑकरिंग इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो अब अगर इनके रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन की बात करें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं है, तो फिर भाई रेस्पायर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? गैस एक्सचेंज ऑकर्स टू द मॉइस्ट बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस इनका मॉइस्ट होता है, उसी में डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और सर्कुलेशन की अगर बात करें, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स जैसे हमारे बॉडी में हार्ट है, ठीक है, वेसल्स वगैरह है, आर्टरी वगैरह है, इनके बॉडी में वैसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर स्यूडोसीलोमिक जो फ्लूइड होता है उसी के जरिए न्यूट्रिएंट्स बोलो, गैस एक्सचेंज बोलो, जो भी है, दैट इज ओनली टेक्स अप द होल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, वो हर्माफ्रोडिटिक टाइप के नहीं होते, वो हमारे जैसे होते हैं कि इफ दैट इज अ फीमेल तो ओनली फीमेल गैमेट विल बी देयर, इफ दैट इज अ मेल तो सिर्फ मेल गैमेट होगा हमारी तरह, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होता है विद द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। देन डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट स्टेजेस ऑफन रिक्वायरिंग द मल्टीपल होस्ट एंड पैरासाइटिक फॉर्म्स, तो उनका ऐसे हमारे तरह डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, सोचो एक लार्वल स्टेज है, ऐसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और कभी कभी इनके लाइक मल्टीप्लाई होने के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए इनको अलग अलग होस्ट चाहिए होता है, क्योंकि ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, तो अलग अलग होस्ट के बॉडी के अंदर जाके उनके मशीनरीज को यूज करके उनसे मतलब फायदा लेके ये डेवलप्ड होते हैं या फिर मल्टीप्लाइड होते हैं, ठीक है। देन if we talk about their excretory system, then excretion through rennet cells or gland cells और a pair of lateral excretory canals। so excretion के लिए हमने, क्योंकि इनका complete digestive system है, तो फूड इनटेक करने के लिए माउथ है, माउथ में लिप्स भी है, हमने देखा है कभी कभी, तो अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन होगा, मतलब अलग पोर्शन होगा, सो दैट इज इन केस ऑफ देम द रेनेट सेल्स और द पेयर ऑफ लैटरल एक्सक्रीटरी कैनल्स, ठीक है। मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट इज एमोनिया, दैट इज व्हाई दे आर एमोनोटेलिक और एमनियोटेलिक भी बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया, ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर यूरियोटेलिक। जिनके बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है वो यूरिकोटेलिक होता है, जिनके बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट एमोनिया होता है वो एमोनोटेलिक और एमनियोटेलिक होता है, ठीक है। देन नाउ कमिंग टू द एनिलीडा, Annelida that consist of segmented worms that exhibit a high degree of body organization and specialization। देखो प्लैटीहेलमिन्थेस बोलो, एस्केलमिन्थेस बोलो, एनिलीडा बोलो, ये वर्म्स ही है। प्लैटीहेलमिन्थेस मैंने क्या बोला, कैसे याद रखोगे, खाने का प्लेट आपका फ्लैट है तो प्लैटीहेलमिन्थेस मतलब फ्लैट वर्म्स। एस्केलमिन्थेस ये गोल टाइप का याद रखना है, तो एस्केलमिन्थेस मतलब राउंड वर्म्स, ठीक है। और ये जो एनिलिड्स है इनको ऐसे याद रखो, ये ऐसे वर्म्स है जिनके बॉडी में सेगमेंट्स है, ठीक है। नाउ दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। Bilaterally symmetrical, again if you cut their body from one plane you will be having 2 identical like left and right halves। Coelomate मतलब इनके बॉडी के अंदर सीलोम है and that coelom is covered by the mesoderm and प्रोटोसोमस एनिमल, ठीक है, ये प्रोटोसोमस टाइप के एनिमल है। तो अभी एनिलिड के बारे में और जानते हैं। दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लाइक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने देखा कि बॉडी में सेल्स एक पर्टिकुलर टिश्यूज बनाते हैं मिलके जो पर्टिकुलर फंक्शन प्ले करते हैं, दोज टिश्यूज दे मेक अ ऑर्गन, एन ऑर्गन विच हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। बायलैटरली सिमेट्रिकल मैंने बोल दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिकल, ट्रू सीलोम भी होता है, ठीक है। देन दैट इज completely lined by mesoderm। then metameric segmentation that, जैसा कि मैंने बोला इनको ऐसे याद रखो, ये वो worms है जिनके बॉडी में segmentation है। अब segmentation मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भाई हेड है, यहाँ पर लेग है, यहाँ पर माउथ है, नहीं, जो भी सेगमेंट है वो रिपीटेटिव है, सिमिलर सेगमेंट्स, मतलब सोचो ये अगर उसका बॉडी है तो दिस आर द सेगमेंट्स इन दैट बॉडी। So these all are the same segments which are repeated. You can see all the segments, they are the same only. ठीक है, ये प्रोटोसोमस टाइप के एनिमल है, तो अभी एनिलिड के बारे में और जानते हैं। दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लाइक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने बोला इनको ऐसे याद रखो, ये वो वर्म्स है जिनके बॉडी में सेगमेंट्स है। अब सेगमेंटेशन मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भाई हेड है, यहाँ पर माउथ है, नहीं, जो भी सेगमेंट है वो रिपीटेटिव है, सिमिलर सेगमेंट्स, मतलब सोचो ये अगर उसका बॉडी है तो दिस आर द सेगमेंट्स इन दैट बॉडी।
यही है उनका मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दैट बॉडी डिवाइडेड इनटू द रिपीटिंग सेगमेंट्स बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, कि ये सेगमेंटेशन उनके बॉडी के अंदर भी जैसे है बाहर भी है. Then they have the coelomic fluid which maintains the body shape, कि सीलोम के अंदर जो उनका बॉडी फ्लूइड है वही उनका बॉडी का शेप को मेंटेन करते हैं. लोकोमोटरी ऑर्गन्स इंक्लूड द सेटे और पैरापोडिया मेड अप ऑफ काइटिन, कि इनका जो लोकोमोशन के लिए भी पर्टिकुलर ऑर्गन है. आप पिक्चर में देख सकते हो, यह सेटे, ये जो छोटा वाला एक रोआ टाइप का जो पोर्शन है दैट इज सेटे, और या फिर पैरापोडिया, ये जो पोर्शन जैसे छोटे छोटे स्पाइक्स जैसे, ये है पैरापोडिया. इनको ये यूज करते हैं अपने चलने फिरने के लिए. देन रेस्पिरेशन थ्रू द बॉडी सरफेस और गिल, ये अपने बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, या फिर जो इनके बॉडी के अंदर जो गिल्स है, क्योंकि हमने देखा इनका ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बॉडी में ऑर्गन्स है, तो उस गिल्स के जरिए भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं. दे हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विद ब्लड कंटेनिंग हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा. ये आपको इतने सारे फाइलम्स में पहली बार सुनाई दे रहा है. दे हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ व्हाट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वी ह्यूमंस हैव. दैट मीन्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग सेपरेटेड है, राइट? हमको पता है आर्टरी में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहते हैं, वेन्स में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहते हैं. हाँ, एक्सेप्शन है एक एक करके. आर्टरी के अंदर पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बट दैट इज ओनली वन एक्सेप्शन. बट मेजरली हमारे बॉडी में, हार्ट में भी अगर आप बोलो, आर्टरीज में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं. सो ऑक्सीजनिक एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सेपरेटेड चैम्बर्स में रहते हैं. दैट इज अबाउट द क्लोज सर्कुलेशन. सो दे ऑल्सो हैव द क्लोज सर्कुलेशन, और उनकी बॉडी में भी ब्लड में हीमोग्लोबिन है. ठीक है, नेक्स्ट उनके एक्सक्रीशन के लिए दे हैव द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रिडिया, एंड इट इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि नेफ्रिडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ठीक है. दे ऑल्सो हैव द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग, कि ऐसे रिंग के तरह नर्व्स होते हैं, एंड द वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ये आप देखोगे कि ये जो एक कॉर्ड टाइप का है दैट इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ये उनका नर्वस सिस्टम का हिस्सा है. ठीक है. देन हाँ, सेक्सुअलिटी मोस्टली बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइटिक, मतलब इनके बॉडी में बोथ द टाइप ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, जैसे अर्थवर्म है. और कुछ यूनिसेक्सुअल भी होते हैं कि जिनके बॉडी में सिर्फ पर्टिकुलर टाइप, मतलब यूनिसेक्सुअल, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, मैं फीमेल हूँ, मेरे बॉडी में सिर्फ फीमेल गैमेट रहेंगे, आप अगर मेल हो तो आपके बॉडी में सिर्फ मेल गैमेट रहेगा. तो ऐसे भी होता है जैसे नेरिस. ठीक है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर होगा. डेवलपमेंट ऑफन इनडायरेक्ट वाया द लार्वल स्टेज, के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ कुछ एनिलीड्स करते हैं, दैट दे डू बाय रीजनरेशन. जैसे कि मैंने बोला कि if there is a cut or injury or something for the asexual reproduction also, so some specialized cells, some kind of stem cells, mostly the pluripotent stem cells, if they are present there, तो वो उस जगह को regenerate करके वहाँ से नया organism create कर सकते हैं. ठीक है. देन हम बात करते हैं एक बहुत बड़े फाइलम की, जो है आर्थ्रोपोडा. ये पिक्चर देख के तो बहुत लोग डिस्गस्टेड फील करें कि भाई फिर से कॉकरोच देख लिया हमने. हाँ, देख लिया. दैट इज अंडर द आर्थ्रोपोडा. दे आर द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम. मोस्टली आर्थ्रोपोड्स में सारे इंसेक्ट्स रहते हैं. ठीक है. Over 1 million described species, insects, crustaceans, then arachnids, they are the part of the arthropods. Found in the land, air, water, भाई कहीं भी, ये कहीं भी मिलेंगे तुमको. ठीक है. रिप्रेजेंट्स मोर देन 2/3 ऑफ वेल नोन स्पीशीज ऑन द अर्थ, क्योंकि ये आर्थ्रोपोड्स अर्थ में जितने भी एनिमल फाइलम है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में यही है. ठीक है. इंक्लूड्स बोथ द फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक. ये आर्थ्रोपोड्स ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक मतलब आपके बॉडी के अंदर डिजीज भी क्रिएट कर सकते हैं. अब इनके बारे में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं.
बॉडी सेगमेंटेशन, इनके बॉडी में सेगमेंटेशन है, लेकिन एनालिड्स के तरह मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में हमने क्या देखा था कि बॉडी इज सेगमेंटेड विद द रिपीटेड पार्ट्स, बट नहीं, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में जो सेगमेंटेशन है देयर दे हैव द डिफरेंट सेगमेंटेशन, जैसे हेड, थोरक्स, एब्डोमेन जो हमको दिखता है कॉकरोचेस में, कि सेगमेंट तो है लेकिन हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से अलग है, ठीक है। They have the exoskeleton, उनके बॉडी का जो exoskeleton है that is made up of chitin. Periodically they can shed that. Appendages से इनके बॉडी में ऐसे joint appendages होते हैं, मतलब सोचो अगर मैं कॉकरोच का लेग बोलूं, ऐसे टाइप का इनका होता है ना कुछ, तो ऐसे नहीं, तुमको ऐसे joint ना appendages देखने को मिलेंगे. It will be something like this. तो ये जो जॉइंट एपेंडेजेस है दैट इज यू कैन सी इन देयर लेग्स विच इज फॉर देयर फीडिंग और मूवमेंट या फिर चलने फिरने के लिए, ठीक है। आईज, दे हैव द कंपाउंड आईज विथ मल्टीपल लेंस, तो इसीलिए इनका विजन उतना क्लियर नहीं होता है क्योंकि मल्टीपल लेंस तो ओवरलैप कर जाते हैं, बट आईज में लेंस है भाई, दिखता तो है कुछ। बॉडी कैविटी इज रिड्यूस्ड फिल्ड विद द ब्लड, और हमें पता है कि इनके ब्लड को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। देन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, दे हैव द कंप्लीट विद द मूवेबल माउथ पार्ट्स, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारी तरह दे विल हैव अ पर्टिकुलर पोर्शन फॉर देयर इंजेक्शन, पर्टिकुलर पोर्शन फॉर देयर इजेक्शन। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स, हमको पता है अभी एक थोड़ा इंसेक्ट कैटेगरी में आ गए तो बुक लंग्स बोलो, फिर गिल्स बोलो, ट्रैकिया बोलो, ये सब हम देखते हैं ना, कॉकरोच बोलो, स्कॉर्पियंस बोलो, इन सब में हम वी कैन सी दैट, तो जस्ट द सेम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, ब्लड फ्लोज इन साइनसेस, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे तरह क्लोज नहीं होता है, इनका ऐसे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग चेंबर में नहीं, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, साइनस में सारे ब्लड मिक्स हो जाते हैं। देन एक्सक्रीशन, जैसे इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसके लिए इनका एक्सक्रीशन के लिए दे विल हैव अ डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट पोर्शन, फॉर दैट दे हैव द ग्रीन ग्लैंड्स और द मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, जो हम इंसेक्ट्स में देखते हैं, कॉकरोच में भी देखते हैं, दैट इज फॉर द एक्सक्रीशन। देन नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग अराउंड द फेरिंग्स एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, पिछले पिक्चर में आपने देखा था ना ऐसा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इनके फेरिंग्स के अराउंड द नर्व्स दे मेक अ रिंग काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, और वहां से ऐसे कॉर्ड्स निकलते हैं नर्व्स के, सो दैट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम। एंड एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें, दे आर द फर्स्ट एनिमल्स विद द हार्मोन्स फॉर ग्रोथ, ह्यूमंस तो आते हैं, लेकिन अगर आप फाइलम के बेसिस पे नीचे के तरफ देख रहे हो तो अभी तक किसी भी फाइलम में आपने देखा हार्मोन्स वगैरह है ग्रोथ के लिए, नहीं, सो दे आर द फर्स्ट एनिमल्स इन दैट केस जिनके बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स है जो उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, जैसे हम ह्यूमंस को चाहिए होता है, ठीक है। देन Here in case of the reproductive system, sexes are separate, जैसे ह्यूमंस में मेल फीमेल अलग होते हैं यूनिसेक्सुअल, वैसे सम शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की मेल बॉडी स्ट्रक्चर और फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं, दैट इज अ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे मेल और फीमेल ह्यूमन में हमें तो कुछ विजिबल डिफरेंस दिखता है भाई, स्ट्रक्चरल डिफरेंस दिखता है। इन केस ऑफ मेल्स वी नो दे हैव द टेस्टिस, दे हैव द पीनस, इन केस ऑफ फीमेल्स वी नो वी हैव द ओवरी, द यूट्रस, द vaginal thing. In case of the females we can see the breast enlargement which is not present in the males, and there also males have the muscular structure, beards which the women will not have. तो ये जो changes है, जो difference है, that is known as a sexual dimorphism, ठीक है। फर्टिलाइजेशन दैट इज इंटरनल बॉडी के इनसाइड होता है। इनफैक्ट अगर आप कॉकरोच की बात करो तो कॉकरोच का स्ट्रक्चर जब आप बाद में पढ़ोगे यू कैन सी कि उनका मेल स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। ओविपेरस मतलब दे ले द एग्स, दे आर लाइक प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग का जो वे होता है दैट इज द लेइंग ऑफ द एग्स, दे आर ओविपेरस। सम आर विविपेरस दैट कि कुछ आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो जैसे ह्यूमंस दे गिव बर्थ टू द लिविंग वंस वैसे ही वो करते हैं। एंड यू कैन सी ओविपेरस देयर आर द केस ऑफ इंसेक्ट्स एंड विविपेरस देयर आर द एफिड्स, बट देयर आर सम ओवोविविपेरस, मतलब ओवो मतलब एग आ रहा है, विवी मतलब दे विल गिव बर्थ, सो दे विल गिव बर्थ टू द एग्स, right? You can see that eggs hatch internally and young born
alive, मतलब उनके बॉडी के अंदर they will have the eggs and inside the egg the young ones will like development होगा and now from that the young one will take birth. ठीक है, मतलब egg और birth लेना दोनों है. डेवलपमेंट ऑफ एन इंडायरेक्ट इन्वॉल्विंग द मेटामॉर्फोसिस, इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई. ठीक है, बटरफ्लाई हमको पता है फर्स्ट इट इज अ एग, फ्रॉम देयर द लार्वा कम्स. ठीक है, दैट इज अ कैटरपिलर. आफ्टर दैट कैटरपिलर दे फॉर्म्स अ प्यूपा, राइट, एंड फ्रॉम द प्यूपा इट बिकम्स द विंग्ड बटरफ्लाई. तो ये जो लार्वल स्टेज से मतलब इनका जो मेटामॉर्फोसिस मतलब द यंग स्टेज एंड द अडल्ट स्टेज देयर दे हैव ड्रास्टिक डिफरेंस. उनके बॉडी स्ट्रक्चर बोलो, फूड हैबिट्स में बोलो, फंक्शन बोलो, एवरीथिंग इज डिफरेंट बिकॉज इन केस ऑफ बटरफ्लाई द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई दे आर नॉट द सेम, राइट. दैट इज अबाउट द मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पैलमनियस, देन Penaeus, then Limulus, they are the examples of arthropoda. प्लीज याद रखना, मतलब आर्थ्रोपोडा में तो सबसे ज्यादा लिम्यूलस पूछता है कि ये कौन से फाइलम का है. ठीक है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट मोलास्का. मोलास्का का मीनिंग ही है सॉफ्ट बॉडी. स्नेल्स सबने देखा है ना, तो दैट इज द पार्ट ऑफ मोलास्का. यू कैन सी दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, उसके बाद आता है हमारा भाई साहब मोलास्का. ठीक है, इट इंक्लूड्स द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स लाइक द स्नेल्स और द ऑस्टर्स और द ऑक्टोपसेस. ठीक है, इनके बॉडी में सॉफ्ट होते हैं. मोस्टली मरीन, सम फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, बट मोस्टली मरीन, मतलब आप ये ऑक्टोपस बोलो मरीन है, लेकिन हाँ अगर आप स्नेल्स की बात करो तो दे आर टेरेस्ट्रियल. नेम डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोलास्का विच मीन्स सॉफ्ट. They have the body which is very soft. इनका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, इनके बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं होता है. दैट इज वाई इट इज अनसेगमेंटेड. इनका बॉडी डिवाइडेड होता है हेड, मस्क्यूलर, फुट एंड विसरल लंप. मतलब ये उनका हेड पोर्शन है, आप देख सकते हो. ठीक है, ये जो नीचे का पोर्शन है दैट इज द मस्क्यूलर फीट जिसके जरिए वो चलते हैं. एंड दे हैव द हम्प जिसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह भी रहते हैं. देयर एक्सोस्केलेटन, ये जो ऊपर का जो एक्सोस्केलेटन आप देख रहे हो दैट इज यूजुअली अ कैल्सियस शेल, कैल्शियम से बना होता है, विच इज सिक्रीटेड बाय द मैंटल. ये जो इसके अंदर जो मैंटल होता है उसका, वहां से दे सिक्रीट सम काइंड ऑफ कैल्शियम विच मेक्स दिस ऊपर का जो उनका एक्सोस्केलेटन है. ठीक है, they have the mantle cavity, that is the space between the mantle and the body. mantle और body के बीच में जो space होता है उसको हम बोलेंगे mantle cavity. ठीक है, they have the gills, body के अंदर gills होते हैं जो respiration के लिए use करते हैं. and their body filled with the body cavity, इनके बॉडी के अंदर कैविटी होता है जिसके अंदर ब्लड होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोसील. जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में देखा था हम हीमोलिम्फ बोलते हैं उनके ब्लड को, इनके केसेस में हम उसको बोलते हैं हीमोसील. नेक्स्ट, इनका अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है कि दे हैव अ माउथ एंड हैव एन एनस. दे हैव द रेड्यूला विच इज द रैस्पिंग ऑर्गन विद द काइटिनियस टीथ जो उनके फूड इनगल्स मतलब खाने के लिए यूज होता है. रेस्पिरेशन गिल्स है जिसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, दो इनके बॉडी में हार्ट प्रेजेंट होता है लेकिन वहां पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से नहीं रहता है, दे गेट मिक्स टुगेदर. सो इनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए ये दे हैव द किडनी. ठीक है, ह्यूमंस की तरह उतना अच्छा बहुत डिफाइन नहीं होता है लेकिन किडनी होता है बिकॉज वी हैव सीन इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो भैया एक माउथ और एक एनस तो होगा ही, राइट. नर्वस सिस्टम, दे हैव द पेयर ऑफ गैंग्लिया कनेक्टेड बाय नर्व्स. इनका नर्वस सिस्टम बाकी पिछले वाले जो भी अपने फाइलम्स देखे उससे थोड़ा सॉर्टेड है. गैंग्लिया वगैरह होते हैं, देन नर्व्स होते हैं एंड देयर द गैंग्लिया आर जॉइंड बाय द नर्व्स. सेंस ऑर्गन्स, उनके आईज होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं, स्टैटोसिस्ट होते हैं. जैसे कि मैंने बोला स्टैटोसिस्ट हमने पहले भी देखा है, बॉडी के बैलेंस के लिए हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं. इनके आईज है, ऊपर टेंटेकल्स, अगर आप पिक्चर देखोगे पिछला वाला, ये जो टेंटेकल्स है, ठीक है, ये उनके सेंसरी ऑर्गन्स है.
नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, दे हैव द सेपरेट सेक्सेस, यूनिसेक्सुअल हमारे तरह, मेल फीमेल डिफरेंट, बट सम शो डाइमॉर्फिज्म, जैसे मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस देख सकते हो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ हो सकते हैं कि लार्वल स्टेजेस कॉमन है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में और डायरेक्ट में भी। ओविपेरस, दैट दे ले एग्स इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, ये विविपेरस नहीं होते, मोस्टली दे लेग द एग्स एंड फ्रॉम द एग्स, जैसे हम बर्ड्स में भी देखते हैं, दे ले द एग्स एंड फ्रॉम दैट द न्यू ऑफस्प्रिंग कम्स, right? So these are the examples of the mollusca. We have the sepia, we have the pilla, which is the snail, ठीक है? Then we have the chitin, and please मैं फिर से बोल रही हूँ, examples याद रखना बहुत important है, ठीक है? इनफैक्ट ये आप ये चार्ट अभी बना लो, ये आपके नीट के टाइम में भी काम आएगा, या ये अच्छे से रख भी दो ये चार्ट, ठीक है? Now we have come to the portion which is Echinodermata. Starfish देखा है ना, सुना होगा भैया एकाइनोडर्माटा, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है? तो इट इज, द नेम हैज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक एकाइनोस एंड द डर्मा, दैट दे हैव द स्पाइन्स एंड द स्किन, ऐसे टाइप का। दे आर द मरीन इनवर्टिब्रेट्स। मरीन तो पता है, मरीन वाटर में। इनवर्टिब्रेट्स मतलब दे डोंट हैव द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है? They don't have the vertebral column. They have the spiny skin and radial symmetry. Radial symmetry मतलब इनको अगर आप ऐसे बीच में इसे काटोगे तो आपको ऐसे इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आइडेंटिकल लेफ्ट राइट हाफ मिलेगा, इक्वल हाफ मिलेगा, ठीक है? Then they include the starfish, brittle star, sea urchin, sea cucumbers, और ये examples बहुत important है, ऐसे column match करने बोलते हैं ना, match the column 1 with column 2, वहाँ पर ये बहुत आते हैं, ठीक है? Belong to triploblastic, that means they have the 3 germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm. They have the coeloms also, and that body cavity is covered by mesoderm with the organ system level of organization, कि इनके body में specialized organs है for specialized functions, and they are exclusively marine free living benthic organisms. Benthic organisms मतलब वो जो सोचो deep sleep floor में रहते हैं, मतलब they are adapted to less sunlight and less everything, ठीक है? वो मतलब ऐसे marine organisms होते हैं, mostly sea organisms होते हैं। Next, उनके अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जाए, बॉडी अनसेगमेंटेड, इनके बॉडी में वैसा कोई डिविजन सेगमेंटेशन कुछ नहीं है। देन दे हैव द रेडियल सिमेट्री, जैसे कि मैंने बोला बीच में से काटोगे भाई, सेंट्रल एक्सिस से काटोगे तुमको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। दे डोंट हैव एनी टेल और एनी हेड, ऐसा कुछ नहीं है। देयर बॉडी फॉर्म्स आर द स्टार शेप्ड, डिस्क शेप्ड और द फ्लावर शेप्ड। ये तो आप स्टारफिश का पिक्चर देख के समझ ही गए होंगे। माउथ, दे हैव द वेंट्रल माउथ विच इज एट द लोअर mouth and like body के lower side में, and they also have the anus which is on the upper side, मतलब dorsal side मतलब body के upper side में आपको anus मिलेगा और body के नीचे के portion में आपको mouth मिलेगा। और अगर हम mouth और anus देख रहे हैं, so we can say through that they have the complete digestive system, राइट? जहां पर भी हमको अलग से माउथ एंड एनस दिखेंगे, दैट मीन्स दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? देन लोकोमोशन के लिए दे यूज द सॉफ्ट रिट्रैक्टेबल ट्यूब फीट, जो उनके सॉफ्ट फीट है, दैट दे यूज फॉर द लोकोमोशन। कवर्ड विद द कैल्सरस स्पाइनी एक्सोस्केलेटन, हमको पता है एकाइनोडर्माटा का एकाइनो मतलब स्पाइनी एंड डर्माटा मतलब स्किन, तो इनका स्किन थोड़ा स्पाइनी टाइप का होता है, दैट इज देयर एक्सोस्केलेटन ओनली। दे हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बट सिंपल, हमारे ह्यूमंस की तरह इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट सिंपल है, बट है। बॉडी कैविटी मॉडिफाइड इनटू वाटर वस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन, फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज। इनके बॉडी में वाटर वस्कुलर सिस्टम है कि उस वाटर के थ्रू दे टेक अप द न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग for the exchange of the things also, that is done by through this water vascular system. Respiration, dermal branchia which is the gills और tube feet जो locomotion के लिए use करते हैं, that is also used in case of their respiration. Circulatory system जो होता है that is reduced, उतना complex या इतना मतलब हाई फाई नहीं है, और इनका कोई हार्ट नहीं होता है,
ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड है, ब्रेन इनका नहीं है। नर्व रिंग तो मैंने आपको बोला कि वहाँ पर नर्व जैसे रिंग के जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसके मतलब वहाँ से आपको ऐसे स्ट्रेट नर्व कॉर्ड्स निकलेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, वेस्ट रिमूवल वाया डिफ्यूशन, ठीक है। जो भी इनका वेस्ट होता है वो डिफ्यूशन के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। देन सेक्सेस जो है सेपरेट यूनिसेक्सुअल्स ह्यूमंस की तरह इनका, बट सेक्सेस आर डिफरेंट बट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं दिखता, मतलब मेल और फीमेल स्ट्रक्चर यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ऑकर्स इन द सी वाटर, बॉडी के बाहर सी वाटर में होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनका लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, तभी तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, पॉसिबल वाया रीजनरेशन ऑफ द लॉस्ट बॉडी पार्ट। सबको पता है स्टारफिश इनका तो रीजनरेशन होता है कि इंजरी हो, कुछ भी हो, वहां से दे हैव द स्पेशलाइज्ड सेल्स, थ्रू दैट दोज पोर्शंस विल बी रीजनरेटेड एंड फ्रॉम देयर आल्सो न्यू ऑफस्प्रिंग कैन कम. A starfish can regrow an arm, even a new starfish can form from one arm with a part of the central disc, and that is all about the regeneration. Echinodermata का एग्जाम्पल आप ले लो, स्टारफिश, सी अर्किन, सी क्यूकम्बर्स, एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन ये क्वेश्चंस में बहुत आते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट, हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा मतलब they are like the brother or sister of the chordates, ठीक है। they are very closely related, but we know that in case of the chordates, see one thing, if we talk about the chordates, chordates मतलब क्या, जिनके अंदर notochord रहता है, right, those are the chordates. non-chordates are those जिनका notochord नहीं रहता है। now hemichordata ये chordates का भाई है, ठीक है। What happens in case of hemichordata? Hemichordata में they have the stomochord, ठीक है। They also have this chord thing, but in the place of notochord they have this stomochord, ठीक है, भाई बहन जैसे है। तो earlier considered as a subphylum of chordata, but now उनको अलग से रखा गया है। Hemichordates are now treated as a separate phylum under the non-chordates, क्योंकि इनके अंदर तो notochord नहीं है, तो non-chordates का एक पोर्शन है hemichordates, ठीक है। देन इनके अगर हम फीचर्स में जाए तो पहली बात तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स हैं, किनको आप सी वाटर में देखोगे। दे हैव द सॉफ्ट वर्म लाइक बॉडीज। अब पिक्चर ही देखोगे आपको देख के समझ में आ रही है ये सॉफ्ट होकर वर्म के बॉडी जैसा स्ट्रक्चर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके बॉडी में 3 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमारे बॉडी में है कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द स्पेशल फंक्शंस, राइट। एंड देयर बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, जैसे हमारी बॉडी है, इफ यू कट इट फ्रॉम वन प्लेन यू विल बी हैविंग 2 आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, राइट। Can be solitary or colonial, वो they can live individually or they can also live in the colony. Bodies are unsegmented. Yeah, it seems like the worm, but it is not platyhelminthes, it is not aschelminthes, it is not annelids. ठीक है, worm type का है structure, but bodies are unsegmented. मतलब ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए आपके ब्रेन में बाकी वर्म्स के साथ। इनका वर्म लाइक स्ट्रक्चर है बट ये वर्म नहीं है, ठीक है। देन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, द एंटीरियर प्रोबोस्किस, मिडिल कॉलर एंड पोस्टीरियर ट्रंक। बॉडी के सामने यू कैन सी द पोर्शन दैट इज द प्रोबोस्किस, देन बीच का ये जो कॉलर का पोर्शन है, लाइक मिडिल पोर्शन दैट इज द कॉलर, और ये जो पीछे का पोर्शन है बैक साइड दैट इज नोन एज द ट्रंक, ठीक है। चलो अब दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब दे विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर माउथ फॉर द इंजेक्शन एंड द पर्टिकुलर एनस फॉर द एजेशन, राइट। डाइजेस्टिव ट्यूब इज स्ट्रेट और वी शेप्ड। इनका जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो ऐसे स्ट्रेट भी हो सकता है या थोड़ा वी शेप्ड भी हो सकता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स 1 to several pairs of dorsolateral pharyngeal गिल स्लिट्स। इनके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के लिए हमको गिल स्लिट्स दिखते हैं। अब भाई इनका तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुमको तो ऑर्गन दिखेगा रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंपल एंड ओपन, हमारे बॉडी के तरह ऐसा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से अलग चैम्बर में ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है और ओपन टाइप का है कि दे गेट मिक्स टुगेदर। एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय द प्रोबॉस्किस ग्लैंड। हमने देखा है कि बॉडी के जो एंटेरियर सामने वाला पोर्शन है, देयर वी सॉ द प्रोबॉस्किस, तो वहां से दे डू द एक्सक्रीशन। अब भाई कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो माउथ और एक्सक्रीटरी पोर्शन तो अलग होगा। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम विद द डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, कि इनका बहुत मतलब नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, बट ऐसा हमारे ह्यूमंस की तरह इतना स्पेशलाइज नहीं है। डॉर्सल एंड वेंट्रल, डॉर्सल मतलब बैक साइड एंड देन वेंट्रल, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, ऐसे कॉर्ड्स की तरह जो नर्व होते हैं दैट इज प्रेजेंट, ठीक है। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, यूनिसेक्सुअल ह्यूमंस की तरह, मेल बॉडी में मेल गैमेट, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो एक्सटर्नल, की बॉडी के बाहर सी वाटर में द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद अ फ्री स्विमिंग लार्वा इन सम स्पीशीज। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, एंड दे हैव द लार्वल स्टेज, दैट इज व्हाई द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट हेमिकॉर्डाटा। तो आज हमने एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर किया है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू प्लैटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, सॉरी प्लैटिहेलमिन्थेस से हमने स्टार्ट नहीं किया था, हमने स्टार्ट किया था टीनोफोरा से। सो फ्रॉम टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलास्का, देन ये आपके जो एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, तो ये सब कुछ आज हमने कवर किया। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मुझे पता है आप लोगों को ये हो सकता है कि मैम इतना कैसे याद रखें, आई नो इट इज़ अ टफ पोर्शन, बट इट इज़ समथिंग अबाउट योर रेगुलर प्रैक्टिस। ये एक चैप्टर ऐसा है, अगर आप इसको रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो हो जाएगा। सबसे ईजी तरीका मैंने बोल के रखा है, जस्ट मेक अ चार्ट, ठीक है, जस्ट मेक अ चार्ट, हर दिन 5 मिनट के लिए देखो। आई नो इट इज टफ, बट आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे, ठीक है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग कि रोज थोड़ा थोड़ा करके देखो बच्चों, हो जाएगा, कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है। एंड द चार्ट्स और द वट एवर यू आर मेकिंग अबाउट दिस चैप्टर, प्लीज कीप देम वेरी सेफली। जब आप नीट के लिए भी जाओगे तब भी ये चार्ट आपको काम आएगा, ठीक है। सो अभी बाकी का कुछ ही पोर्शन बाकी है, ज़्यादा बाकी नहीं है। अगर अभी हम कॉर्डेट्स के अंदर और मतलब डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा पोर्शन अभी बाकी नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू दिस सेशन, पेइंग दिस मच अटेंशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो फॉर टुडे, thank you so much and goodbye. See you in the next class. Till then, stay safe, stay healthy, do study and have a lot of fun. ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों।